हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर कई मायने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our next topic is the most important here, nuclear power. Nuclear power is the most important because it is the future. The nuclear power is important. The India had developed the technology of generating energy from a nuclear minerals such as uranium and thorium. There is the most important here element, and the installation of the nuclear reactor for the generating power require hux of capital, and is a technological scale here. The share of nuclear power in the total energy produced in a country is hardly 2%. Nuclear power is the promising of source of energy for the future. You know that there is a future. It would be play of the complementary role when the other sources of the power like a coal and petroleum would be executive. There is the most important here, coal and petroleum executed here, but the nuclear power is not executed here. There is a long time and there is a future also. Nuclear power program was initiated in the 5th decade of the last century and apex body for discussion on making. Regarding the atomic programs, there are Tata Atomic Energy Commission here. There is the most important Tata Atomic Energy Commission was incorporated in August 1948. But the progress in this direction could be made only after the establishment of the Atomic Energy Institute at the Thornbury in 1954, which was renamed as the Bhabha Atomic Research Center, BRC. BARC is the most important in 1967. Consequently, first the nuclear power station with the 320 megawatt capacity was set up to the Tarapur near Mumbai in 1969. The later atomic reactor was installed at the Ravabhata is a 300 megawatt near Kota is Rajasthan, and Kalpakkam is a 440 megawatt in Tamil Nadu, and Narora is the Uttar Pradesh, and Kaiga is the Karnataka, and Kakalapara is Gujarat also has a nuclear energy plant. Thus, at a present, nuclear energy produced from a 10 unit localized at a 6 center. Requirement of fuel and other has of those power react of the fulfilled by the nuclear fuel complex localized at the Hyderabad and heavy water plant at Badodara. 16,707 MU mass is a nuclear power was generated in the year 2004-2005. There are 16,707. That is the most important here. BIT is a small fraction of the country's as a total production of electricity energy. The Department of Atomic Energy means DAE has the ambitious is a nuclear power program aiming at the achieving as on an installed nuclear power capacity of
20,000 megawatt is by the year 2020. There are 20,000 megawatt of 2020. Generation of nuclear power is highly hazardous as a slightly carelessness in the security was a cause of serve accident, endangering the life of thousands of the people in the surrounding area. Therefore, the strict of the precaution and security measuring are highly necessary. There is important. The power energy is the most important here. Depend upon the accidentally a thousand of people is damaged in this case. यदि बात हम करें परमाणु शक्ति, देखिए परमाणु शक्ति के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको साफ बता दूं कि परमाणु शक्ति का जो है भविष्य उज्जवल है और इसका भविष्य में भी बखूबी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि परमाणु शक्ति अगर हम उपयोग कर रहे हैं विद्युत के उत्पादन में तो इसका सबसे महत्वपूर्ण रख रखाव होती है, क्योंकि अगर एक बार अगर लीक इसमें हो जाए तो कहते हैं उस क्षेत्र के जनजीवन जो है तहस नहस हो जाती है। इसलिए सरकार इसके ऊपर बहुत अधिक जो है कारगर सिद्ध नहीं किया है और इस पर कोई भी राय विचार सही से लेना संभव नहीं हुआ है। कहते हैं भारत के कुछ क्षेत्रों में बेशकली जो परमाणु शक्ति संयंत्र से चलाई जा रही है, लेकिन ये कहते हैं बहुत ही संकट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि परमाणु शक्ति इतनी विनाशकारी होता है और इसमें कई देशों को जो है चपेट में ले भी रखा है। इसलिए भारत में इसको लगाने से जो है बड़े बड़े जो है कंपनियां इसको थिर्राती है, क्योंकि भारत में देखा जाए कि यहाँ पर आलस्य बहुत है, लोग जो है इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन परमाणु शक्ति में जो भी कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही एक्टिव रहने की आवश्यकता है, तभी जो है इसको यहाँ लगाया जाना सार्थक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं विश्व में हर क्षेत्र में देखा जाए तो परमाणु शक्ति जो है लगाया जा चुकी है और वहाँ पर इसका भली भांति उपयोग भी हो रहा है। लेकिन भारत में आगामी क्षेत्रों में कुछ ही क्षेत्रों में ही जो है परमाणु शक्ति का उपयोग हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि भारत सरकार इस पर क्यों नहीं जोर दे रही है और क्यों नहीं इसको लगा रही, क्योंकि इसके रख रखाव और इसके जो होने वाले विनाश है वो बहुत ही भयंकर सिद्ध होता है। इसलिए भारत में जो है इसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिर भी भारत में कुछ क्षेत्रों में जो है इसको जरूर स्थापित किया गया है, उसी के विषय में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और इसके योगदान के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहते हैं भारत ने जो यूरेनियम थोरियम जैसे परमाणु खनिजों के ऊर्जा उत्पादन करने की जो प्रौद्योगिकी विकास कर ली थी। कहते हैं जो है परमाणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए परमाणु रिएक्टर की स्थापना हेतु बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश के साथ उच्च कोटि की तकनीक विकसित आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी प्रश्न तो यही उठता है कि इसमें सबसे अधिक जो है पूंजी निवेश होती है और दूसरा जो होता है बहुत ही उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में परमाणु शक्ति का कुल उत्पादित शक्ति सभी स्रोतों से में जो है 2% का ही योगदान है, यानी परमाणु शक्ति से हम सिर्फ आज के समय में 2% ही उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। परंतु आगामी भविष्य में परमाणु शक्ति का ऊर्जा का जो है उदीयमान स्रोत सिद्ध होगा। कहते हैं भविष्य के लिए उज्जवल हो सकता है, भविष्य में इसका उपयोग जो है भली भांति किया जा भी सकता है। जब भविष्य में ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि समाप्ति के कगार पर आ जाएंगे तो यह शक्ति के पूरक स्रोत के रूप में भी कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, परमाणु शक्ति का जो है आने वाला समय के लिए जो है भविष्य उज्जवल है, लेकिन देखा जाए तो अभी जो है इसका उपयोग सिर्फ 2% भारत में हो पा रहा है। परमाणु शक्ति जो है कार्यक्रम पिछली शताब्दी के 5वें दशक में आरंभ किए गए थे और अगस्त 1948 में टाटा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना एक शीर्ष स्थापना के रूप में की गई थी, जो परमाणु कार्यक्रमों में जो है न्यायात्मक गतिविधियों का संचालन करता था। परंतु इस दिशा में प्रगति परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो है ट्रैम्बो में 1949 में स्थापना के बाद ही हो सकी। इस संस्था के जो 19 में एक नया नाम भाभा परमाणु शोध केंद्र रखा गया, जिसे वर्क दिया गया, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण कि 1967 में जो है इसका नाम भाभा परमाणु शोध केंद्र रखा गया। भारत का सर्वप्रथम परमाणु शक्ति केंद्र जो है 320 मेगावाट शक्ति, जो कि मुंबई के पास तारापुर में स्थित है, 320 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन कर रहा है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में, यानी 1969 में स्थापित किया गया था। और इसके बाद परमाणु रिएक्टर रावत भाटा यानी 300 मेगावाट कोटा में जो स्थापित किया गया, जो कि राजस्थान में है, जहां पर 300 मेगावाट जो है का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। उसके बाद जो है पक्कम में जो है 400 मेगावाट शक्ति जो है उत्पन्न की जा रही है इस न्यूक्लियर पावर से। और तमिलनाडु में जो है नरोड़ा, उत्तर प्रदेश में
जो है नरोडा और जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोगा कर्नाटक में और करापारा जो है गुजरात में भी स्थापित हुई है। इस प्रकार वर्तमान में परमाणु शक्ति का उत्पादन 10 इकाई से जो कि 6 केंद्र में अव्यवस्थित है। यानी अभी देखा जाए तो सिर्फ भारत में 6 केंद्र ही जो है परमाणु शक्ति की बनाई गई है, ठीक है। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हर एक राज्य में देखने को मिले। लेकिन कहते हैं परमाणु ईंधन एवं भारी जल की आवश्यकता की आपूर्ति क्रमश परमाणु ईंधन संयंत्र समूह हैदराबाद तथा भारी जल संयंत्र वडोदरा से भी की जा सकती है, जो कि काफ़ी महत्वता की ओर जो है प्रकाश डाल रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो 2004 से 2005 में जो है 16,707 मेगावाट परमाणु शक्ति उत्पादन हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2004 से 2005 में 16,707 मेगावाट परमाणु शक्ति का उत्पादन हुआ, जो कि देश के कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का एक छोटा सा ही अंश है। कहते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के पास बहुत ही महत्वाकांक्षी परमाणु शक्ति योजना है, जिसका लक्ष्य 2020 तक जो है 20,000 मेगावाट प्राप्त करना है। कहते हैं 20,000 मेगावाट की तरफ जो है DAE का है लक्ष्य है, लेकिन ये पहुंच पाती है कि नहीं। लेकिन कहते हैं कोई इसमें दो राय नहीं, जिससे जल विद्युत का प्रयोग ख़त्म होने जैसा है सिस्टम बन गया है, वहीं पर जो है कोयला पेट्रोल भी ख़त्म हो रहे हैं। तो हो सकता है कि 2030 के आसपास देखा जाए तो हम जो है इसी परमाणु शक्ति पे ही आश्रित हो जाएंगे। परमाणु शक्ति के उत्पादन की प्रक्रिया जटिल एवं जोखिम भरी रहती है। तो पहले ही मैंने संकेत किया था कि ये बहुत ही जटिल एवं जोखिम भरी है। जरा सी भी चूक अथवा सावधानी के पालन में भूल बहुत बड़ा हादसा पैदा कर सकती है, जिससे संयंत्र के परिवेश एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही तथा हजारों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए परमाणु शक्ति केंद्र की सुरक्षा को कठोर उपायों की निहायत आवश्यकता होती है। तो इसी कारण जो है भारत में जो इसका स्थापना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत ही माल जाल की हानि होने की संभावना बन जाती है। Our next topic is the most important here, regional classification on the basis of the source of electricity. That is the most important point here, regional classification on the basis of sources of electricity. The three types of region can be identified on the basis of source of electricity here. Three types only. There is a first here, hydroelectricity dominated region. Hydroelectricity dominated region here. The state included under this category are Karnataka, Kerala, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Meghalaya, Nagaland, Tripura and Sikkim. These states are far away from a coal field but have a optimum condition for the development of hydroelectricity. There is the most important hydroelectricity dominated region here. The dominated region in your screen. There are Kerala, Karnataka, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu Kashmir and Meghalaya, Nagaland, Tripura and Sikkim here. The next here, thermal power dominated region here. Thermal power dominated region here it is included state such as the West Bengal, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, Assam, Delhi, Haryana and Punjab. In this state here thermal power dominated region here, and there is one important. The majority of this state have a reserve of coal which are utilized for a power generation. Bihar, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab do not have a coal reserve but have a direct access to the coal field by railway line. However, there are diversified their source of here of power. And the next here, nuclear power dominated region here. The nuclear power dominated region is mainly is a Rajasthan and the only state which is a come under this category. The Rajasthan is the only state there is a come to this category. In Rajasthan is a more than half of the total commercially energy is a nuclear. It is because the state is defected of both of coal and water. There is an important here. यदि बात करें हम विद्युत उत्पादन के स्रोत के आधार पर क्षेत्रीय वर्गीकरण, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि विद्युत उत्पादन के स्रोत के आधार पर जो है क्षेत्रीय वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। तो देखा जाए तो विद्युत उत्पादन के स्रोत के आधार पर 3 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जल विद्युत प्रधान क्षेत्र है, जिसमें जल पे ही जो है पूरा क्षेत्र निर्भर है, जिसमें इस क्षेत्र में जो है अंतर्गत शामिल राज्यों में कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य आते हैं, जो जल विद्युत प्रधान क्षेत्र हैं और यहाँ पर जल से ही जो है विद्युत की उत्पादन की जाती है।
कहते हैं ये राज्य कोयला खनिज क्षेत्र में काफ़ी दूर स्थित है, परंतु यहाँ भी भौगोलिक परिस्थिति और जल विद्युत शक्ति उत्पादन में यथेष्ट सहायक है। तो इन क्षेत्र जो है काफ़ी दूर है कोयला और पेट्रोलियम से, इसलिए यहाँ पर जो जल विद्युत प्रधान क्षेत्र के रूप में इसको आकलन किया गया है। उसके पश्चात आता है ताप शक्ति प्रधान क्षेत्र। देखिए ताप शक्ति प्रधान क्षेत्र कौन से हैं। इस क्षेत्र में सम्मिलित राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब। ये सारे के सारे जो है ताप शक्ति प्रधान क्षेत्र हैं। ताप शक्ति का अर्थ यही हुआ कोयला पेट्रोलियम पे आश्रित होने वाला। तो देखा जाए तो इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब है। लेकिन देखा जाए तो हरियाणा पंजाब के साइड कोयला के भंडार नहीं है। तो ये कैसे होता है। इसमें से अधिकांश राज्यों में कोयले के अपार भंडार हैं जिनका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में होती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो कहते हैं कोयला भंडार के यहाँ पर क्षेत्र कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी इन क्षेत्रों के रेलवे लाइन द्वारा सीधे जो है पहुँच उपलब्ध है। ये राज्य आजकल ऊर्जा के स्रोत में विविधता ला रहे हैं। तो देखा जाए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ पर जो है कोई खदान नहीं होने के पश्चात भी इन क्षेत्रों में जो है बिजली की आपूर्ति जो है कोयले के अंतर्गत होता है और इसका जो है ये दूसरे राज्यों से खरीदते हैं, यानी इसको रेल लाइन के द्वारा उस क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे बात करें परमाणु शक्ति प्रधान क्षेत्र, तो देखा जाए जैसे कि हम बात किए हैं जो है परमाणु शक्ति प्रधान क्षेत्र में कोई भी राज्य नहीं है, लेकिन सिर्फ एक राज्य ही प्रधान है। कहते हैं हमने 6 राज्यों के बारे में बात किया था। 6 राज्य जो हैं परमाणु शक्ति के साथ साथ जो है वो जो है ताप शक्ति का उपयोग भी करती है और जल शक्ति का उपयोग भी करती है। लेकिन सिर्फ परमाणु शक्ति प्रधान क्षेत्र सिर्फ राजस्थान है, क्योंकि परमाणु शक्ति राजस्थान होने का कारण यही है कि यहाँ पर जो है आप समझ सकते हो कि पानी की जो है उपलब्धता नहीं है, ना ही कोयला का यहाँ उपलब्धता है, जिसके कारण जो है राजस्थान में जो है पूरी तरह से परमाणु शक्ति प्रधान क्षेत्र बना दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से परमाणु शक्ति पर ही निर्भर है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जो इसके अंतर्गत आते हैं और इस राज्य में 50% से ज़्यादा जो है आणविक ऊर्जा परमाणु शक्ति पर आधारित है, इसलिए कि इस राज्य में जल और कोयला दोनों का काफ़ी मात्रा में अभाव रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ महत्वपूर्ण सारी बातों पे जिस पे हमने यहाँ पर जो विस्तार पूर्वक चर्चा किया और जाना, हर एक पहलू के विषय में हमने चर्चा किया। ठीक है, अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहे और बने रहने के साथ आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प का भी मन बनाना है और हेल्प करने के लिए इतना करना है कि ये वीडियो जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाना भी है, क्योंकि मैं जानता हूं ये वीडियो हर एक रूप में फ़ायदेमंद है। कहते हैं सबके देखने का अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन कहते हैं अगर शब्द स्क्रीन पे फ्लैश होता रहे और समझाने वाला व्यक्ति समझाता रहे तो इसका इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है, चाहे कुछ व्यक्ति माने चाहे न माने। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो जितना हो सके आप त्रिपाण स्टडी सेंटर जुड़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहते हैं शेयर करना एक अच्छा कार्य होता है, इससे न जाने किस बच्चों को क्या समझ में आ जाए किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर कीजिए और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। अगर आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, बाद में कोई जो है टॉपिक रिसर्च करना चाहिएगा तो शायद दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए, इसलिए अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। सेव कर लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जो होगा होम पेज पे जो है आपको यूट्यूब पे रहेगा, यानी आपके मोबाइल में ही जो है चैनल सेव हो जाएगा और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर वीडियो सारे होते हैं। प्लस आपको पता है यहाँ पर जो सिलेबस के अंतर्गत भी मिलेगा, टॉपिक के अंतर्गत भी मिलेगा, क्लास के अंतर्गत भी मिलेगा, तो सारे जो है प्लेलिस्ट पे प्रावधान बनाए गए हैं। तो आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी करना मत भूलिए। कमेंट करने से दोस्तों ये होता है कि गलतियों को सुधारा जाता है। कहते हैं बच्चे हर तरह के कमेंट करते हैं, कोई कमेंट दुखी भी मुझे मन को करता है, कोई कमेंट मुझे खुशी भी करता है, लेकिन कमेंट करना ज़रूर होता है, इससे कहते हैं कुछ पता लगता है। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि वीडियो ढूंढने में मुश्किल आता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। अगर आपको भी कोई सुझाव देना है, कोई विचार रखना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए।